Good morning, student of class 4. How are you? I hope student you all are fit and healthy. So student, today date is 7/9/2020. I am teaching you chapter number 16, our surroundings. So student, at the time when you are watching the video, take one rough copy and pencil so that you can note down the notes from the board also, and this will help you to understand the chapter. Open page number 93. Let do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, due to what happens due to the dirty surroundings, if the surroundings are not clean, then what happens? These dirty surroundings help in the growth of the germs that causes different types of diseases. So, and also student, you must take care also that there should be no stagnant water in the house also and in the surroundings also, because these stagnant water is the breeding ground of mosquitoes, and due to the bite of these mosquitoes we will suffer with different types of diseases. So student, yesterday we are talking about waste materials. Okay student, see what is waste. Waste are those things which are of no use to us. Is it clear? So waste can be solid also, waste can be in liquid form also. We use lot of water in our day-to-day life. We not only use water for the drinking purpose, it is also used for many household activities. That is the reason it is given waste can be solid form also, or waste can be also in the form of a liquid also. Is it clear? So with our daily activities,
The waste, what we do with the waste? Your mother is making food for you, so there is also a waste of a vegetables also, vegetable peels. जैसे जो सब्जियां होती हैं, तो बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके हमें छिलके जो होते हैं बेटा रिमूव करने होते हैं। हम लोग आलू छिलके निकाल के खाते हैं ना, डायरेक्ट नहीं ना खा जाते हैं। तो और भी घर में बहुत सी वेस्ट होती हैं। तो व्हाट वी डू विद दिस वेस्ट? वी थ्रो दिस वेस्ट इन द डस्टबिन। We throw it in the dustbin, and that dustbin should be covered. Okay, now see student, the question arises, if there is not a proper disposal of a waste, then what happens? अगर इतनी वेस्ट जो होती है इसका प्रॉपर डिस्पोजल ना हो तो क्या होगा बेटा? सारा लैंड तो गार्बेज से, कूड़े से ही कवर हो जाएगा, है ना? तो दैट इज द रीजन, जो ये जितनी भी वेस्ट है इसका भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल स्टडी दिस थिंग इन टुडे टॉपिक, हाउ वी कैन डू द डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स which are of no use, we throw it in the dustbins, and after that what happen with these things? Okay, see, we collect all the things, throw it in the dustbin, and from the dustbin we are throwing, there is some place where all the peoples of that community are throwing their waste of the houses in that place, and after that municipalities trucks comes and they collect all these waste and they take it out from the cities area और इसे ओपन ग्राउंड्स में डंप करते हैं। इज इट क्लियर? वो भी मैं फर्दर आपको बताऊंगा। सो दैट इज द रीजन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस। अब नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन टुडे टॉपिक, how we do proper disposal of the waste. So now waste material, so now when we are talking about the different types of a waste which are produced, so first of all understand student different types of waste. Okay, first you try to understand जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हमें प्रॉपर डिस्पोजल किसका करना है, तो वेस्ट भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इज इट क्लियर? वी विल डिस्कस दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस what are the methods or what are the techniques we apply for the disposal of this waste. Okay, now see, all the waste that we generate, the waste is divided into two types. The waste is divided into two types. Waste are of two types: biodegradable
biodegradable waste and non-biodegradable waste. These are of two types. So first of all, let's discuss this, and after that I will explain you non-biodegradable waste. Okay. So what are the biodegradable waste? See student, these are the notes which you can note down from the board. देखो आप सोच रहे होगे कि these things are written in the book. बुक में तो है ही, क्यों बोर्ड से लिखें? लेकिन बेटा frankly speaking, when you are studying from the book, so there are many things are given in the book, but if in this manner small points you will note, so before reading the book, when you see this point, then the things start coming in your mind कि सर ने टॉपिक कैसे स्टार्ट किया था, क्योंकि बुक में पैराग्राफ वाइज दे दिया है सब कुछ. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर नोट किए रहोगे तो देन इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग. सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा. जब हमने वेस्ट की स्टार्ट की, वेस्ट मटेरियल, सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया द थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज टू अस. ठीक है, वो वेस्ट होती हैं. ठीक, फिर आफ्टर दैट अब देखो वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वेस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट. सो व्हेन वी talk about the types of waste, then it is divided into two types, that is biodegradable and non biodegradable. So first of all we discuss biodegradable waste, and then we will discuss non biodegradable waste, and after that we will discuss disposal of these types of a waste. Fruit, vegetable, peels, old clothes, fallen leaves, old newspaper, leftover food, decay and degrade, and become part of the soil. Now see student, when we are talking about the biodegradable, when we are talking about the waste, it is divided in two types. So when we are talking about biodegradable waste, so what are the things which come in this category? What are the things? Fruits, okay, vegetable peels. मैंने बताया ना, बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनके छिलके निकालने के बाद बनाई जाती हैं. इज इट क्लियर? सो ओल्ड क्लोथ्स, fallen leaves, when the leaves dry from the trees, then after that they fall down and the new leaves come on the trees. ठीक है, ड्राई लीव्स जो होती हैं वो पेड़ों से गिर जाते हैं पत्ते, and after that new leaves come on the trees. So these are the things which come in biodegradable waste. Fruit, vegetable peels, clear हो गया सबको. Old clothes, the clothes which we wear, that also. Fallen leaves, old newspaper also,
ओल्ड न्यूज़पेपर का देखो तुम लोग रिसाइकलिंग भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी इसको इस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि जो पेपर है, पेपर इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया था, कोल, कोल हाउ द कोल इज फॉर्म, जितने प्लांट्स ये सब गिरते गए, जमीन में दबते गए सड़ते गए हजारों लाखों ईयर्स पहले, तो फिर वो नीचे प्रेशर के कारण किस फॉर्म में चेंज हो गया, उसी का कोल बन गया, बताया था ना एक चैप्टर में। सो ओल्ड न्यूज़पेपर की रिसाइकलिंग होती है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हम इसे बायोडिग्रेडेबल में इसलिए बोल रहे हैं कि पेपर्स भी, अभी मैं बताऊंगा, यहां पे बताऊंगा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। पहले लिसन इट, ओल्ड न्यूज़पेपर, left over food, left over food is also we are getting, it is also a plant product, is it clear? Decay and degrade and become part of the soil. देखो what does it mean, the things which I have mentioned on the board, all these things, ये सारी चीजें सड़ने के बाद क्या है, सॉइल में मिक्सअप हो जाती हैं। आई बात समझ में, इसलिए न्यूज़पेपर को भी मैंने इस कैटेगरी में रखा था, क्योंकि न्यूज़पेपर भी प्लांट का ही पार्ट है। फूड यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, फॉलन लीव्स, ठीक, ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है, कॉटन क्लोथ्स, दैट आल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट, फ्रूट, vegetable peels. So what happens student, these all things decay means ये चीजें बहुत समय के बाद ये चीजें क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, ठीक है, और सड़ने के बाद ये किसमें मिक्सअप हो जाते हैं, सॉइल का ही पार्ट बन जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह ये चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। डीके मतलब सड़ जाना, सड़ने के बाद ये चीजें क्या है, सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सॉइल, सो वी से इट एज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, आफ्टर दैट व्हेन आई टीच यू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तब मैं व्हाट आर द बेनिफिट फ्रॉम दिस वेस्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू, बेनिफिट भी है इस वेस्ट का, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। बस पहले ये समझ लो कि बहुत सी ये वो चीजें हैं जो सड़ने के बाद सॉइल में मिक्सअप होके उसी का पार्ट बन जाती हैं। इज इट क्लियर? तो फ्रूट है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पील्स, ओल्ड क्लोथ्स, फॉलन लीव्स, ओल्ड न्यूज़पेपर, लेफ्ट ओवर फूड, डीके एंड डिग्रेड एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है।
Now see all of you on the board. Firstly we discuss about the biodegradable waste. Now let's see what are the things which come in the category of a non biodegradable waste, like polythene bags, okay, plastic objects, of the things which are made of a plastics. Aluminium, what is aluminium? It is a metal, okay. और सिरामिक, एक्स्ट्रा सिरामिक आप कह सकते हो, जैसे जो पॉटर्स जो होते हैं ना, पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत हार्ड होते हैं और ये भी सॉइल में मिक्सअप नहीं होते हैं. इज इट क्लियर? ये भी सॉइल में मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक. विच डू नॉट डीके, ये ऐसी चीजें हैं जो सड़ती नहीं है, ठीक है. पॉलीथीन कितना भी पुराना प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट, ये सड़ते नहीं है, इसलिए ये डिग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है. जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो चीजें थी वो सड़ जा रही थी और लास्ट में वो सॉइल में ही मिक्स हो जा रही थी, उसी का पार्ट बन जा रही थी. बट व्हाट हैपन हियर, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, एल्यूमिनियम, मेटल्स, और भी मेटल्स हैं, सिरामिक, दीज आर द थिंग्स विच डू नॉट डीके, ये चीजें सड़ती नहीं है, और सड़ती नहीं है तो ये क्या है, सॉइल में मिक्सअप भी नहीं होती. ये सब चीजें क्या है, सॉइल में मिक्सअप नहीं होती हैं. इज इट क्लियर? तो जो वेस्ट इसमें आई बेटा, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आ गया समझ में? उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दीज आर द टू कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ वेस्ट. अब आ गया समझ में? तब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट. और ये जो वेस्ट अभी जितनी हमने बात की थी, ये सारी क्या सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं. अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, सॉलिड वेस्ट आर सॉलिड आल्सो, वेस्ट आर लिक्विड आल्सो, ठीक है. अभी दैट आल्सो वी विल डिस्कस. सो थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन फॉर योर गुड अंडरस्टैंडिंग. वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं? दैट आई एक्सप्लेन यू, द थिंग्स विच आर ऑफ नो यूज टू अस. We don't need that things now more, so that things become waste for us, okay. And when we are discussing about the waste, it is divided into two types, that is biodegradable and non biodegradable waste. So what are biodegradable waste? Biodegradable waste are those waste which decay, जो चीजें सड़ जाती हैं, and after that they become the part of the soil, ठीक है. एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं द थिंग्स डू नॉट डीके, ये सड़ के खत्म नहीं हो रही हैं, ये सॉइल में मिक्सअप नहीं हो रही हैं, ठीक है. तो दीज टू टाइप्स ऑफ वेस्ट वी हैव डिस्कस टुडे. नाउ नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अब देखो नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं किया गया तो जो भी लैंड है वो तो पूरा गार्बेज बन जाएगा. तो ऐसे में लाइफ पॉसिबल होगी? नो. इज इट क्लियर? सो नाउ सी स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 94. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए क्लीन इन्वायरमेंट. जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी फिट एंड हेल्दी, तो आपकी सराउंडिंग्स क्या क्लीन होनी चाहिए. दैट इज द रीजन we have to plan for these things, that how we do the proper disposal of these waste materials, how we do the
proper disposal of these waste material. If there is no method, then what happen? Surroundings are clean? No. Is it clear? क्योंकि देखो आप अपने घर तो क्लीन कर लेते हो, that is another thing, but after doing that there are lot of waste we are throwing daily from our houses. अब उस वेस्ट को नहीं, जैसे आप घर क्लियर करते हो, वेस्ट को थ्रो कर देते हो बाहर, यू मेक इट आउट फ्रॉम योर हाउसेस. अब बाहर से अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा, देन व्हाट्स हैपन? All the surroundings are full with this waste material. All the surroundings are full with this waste material. Okay, so now see, the collection and disposal of garbage is very important. Garbage breed germs if not disposed of properly. ठीक है, वट इज सेइंग, कलेक्शन ऑफ द गार्बेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया. इन द बिग सिटी वी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड द स्मॉल टाउन्स एंड सिटी वी से म्युनिसिपल कमिटीज. सो द ट्रक ऑफ दिस म्युनिसिपल कमिटीज कम्स एंड in one after 1 or 2 days, and they collect all these garbage and they throw it out from the towns and cities in a open area. ठीक है, इस पूरे वेस्ट को वो लोग कलेक्ट करके कहीं ओपन एरिया में ले जाते हैं. ठीक है, बिकॉज इफ द वेस्ट इज अराउंड योर हाउसेज, देन व्हाट्स हैपन? इट गिव ड्यू टू लॉट ऑफ जर्म्स. ओके, देन if there is a lot of garbage around or in the community in which you are living, आप जहां रहते हो अगर वहां बहुत सी गंदगी है तो वहां से बहुत बीमारियां होंगी, क्योंकि ये गार्बेज है, क्या कूड़ा है, सड़ रहा है वहीं पे, तो इससे बहुत से डिजीजेस फैलेंगे. इज इट क्लियर? इससे बहुत से डिजीज गिव बर्थ टू द जर्म्स. इट इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द जर्म्स. नाउ ये अब यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट क्या होती है. द थिंग्स विच इज ऑफ नो यूज, वो वेस्ट हो गई. वेस्ट थिंग्स वी थ्रो आउट फ्रॉम आवर हाउसेज. एंड अनदर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट के जब हम बात कर रहे थे, देन इट इज डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में वो थिंग्स थी बेटा, those after decay they degrade into the soil and then they become the part of the soil. soil में मिक्सअप होके खत्म हो जाती हैं. पर ऐसा नहीं है बहुत जल्दी हो रहा है. इट टेक टू मच टाइम फॉर दैट आल्सो. उसके लिए भी काफी टाइम लगता है. विद इन 1 day 2 day में नहीं हो जाता है. ठीक है, और आफ्टर दैट फिर हमने डिस्कस किया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच कैनॉट बी डिके, जिसे जो सड़ नहीं सकती, सड़ के नहीं खत्म होगी. इट कैनॉट बी मिक्स इन द सॉइल, तो वो आगे बेटा आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आ गए. पॉलिथीन है, प्लास्टिक बैग्स है, मेटल्स है, सिरामिक है. सो ये सब किस में आ गए? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ गए. ये सब चीजें सॉइल में मिक्सअप नहीं हो सकती. ठीक है, दैट इज द रीजन. देखो पॉलिथीन मैक्सिमम स्टेट्स में पॉलिथीन को बैंड किया जा रहा है. ये भी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, मैक्सिमम जगह पॉलिथीन्स बैंड्स हो रहे हैं. ओके, सो नाउ आफ्टर दैट, अब डिस्पोजल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. why this is very important thing? If there is not a proper disposal of the waste material of these garbage, then what's happen? The surroundings are full of garbage, then these places become, it is then these places lot of germs, and due to this lot of diseases spread due to these germs. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट.